Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. What type of action is covered under Section 3, Subsection 1, Clause R of the SC/ST Act? Physical assault, property damage, insult or intimidation or theft. SC/ST अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 आर के अंतर्गत किस प्रकार की कार्यवाही शामिल है? शारीरिक हमला, संपत्ति की क्षति, अपमान या धमकी या चोरी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इंसल्ट और इंटिमिडेशन. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपमान या धमकी. Section 3, Subsection 1, Clause R of the SC/ST Act specifically deals with intentional insults or intimidation with the intent to humiliate SC/ST members in public view. The maximum punishment for the offence under Section 3, Subsection 1, Clause R of the SC/ST Act is 5 years of imprisonment along with a fine. SC/ST अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 आर विशेष रूप से SC/ST सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या धमकी देने से संबंधित है. धारा 3 उपधारा 1 आर के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा SC/ST एक्ट के तहत 5 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है. नेक्स्ट, which section of the Official Secrets Act 1923 mentions penalties for harboring spies? Section 5, Section 7, Section 10 और Section 15. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की किस धारा में जासूसों को शरण देने पर दंड का उल्लेख है? धारा 5, धारा 7, धारा 10 या धारा 15? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 10. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 10. Section 10 of the Official Secrets Act 1923 prescribes penalties for individuals found guilty of harboring spies or aiding them. The act makes spying, sharing secret information, unauthorized use of uniforms, interference with the police or armed forces in prohibited restricted areas among others punishable offenses. सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 10 में जासूसों को शरण देने या उनकी सहायता करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान है. अधिनियम में जासूसी, गुप्त जानकारी साझा करना, वर्दी का अनाधिकृत उपयोग, निषिद्ध क्षेत्रों में पुलिस या सशस्त्र बलों के साथ हस्तक्षेप आदि को दंडनीय अपराध बनाया गया है. नेक्स्ट, which section of the DSPE Act 1946 deals with the consent of the state government for CBI jurisdiction in its territory? Section 2, Section 6, Section 8 और Section 12. DSPE अधिनियम 1946 की कौन सी धारा अपने क्षेत्र में CBI क्षेत्राधिकार के लिए राज्य सरकार की सहमति से संबंधित है? धारा 2, धारा 6, धारा 8 या धारा 12? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 6. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 6. Recently, the Allahabad High Court in Kalpana Maheshwari versus State of Uttar Pradesh ruled that CBI requires only the central government's sanction, not state consent, to investigate offences committed abroad by Indian citizens. Section 6 of the DSPE Act 1946 governs states' consent for CBI investigations within the state. हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल्पना माहेश्वरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में फैसला सुनाया कि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किए गए अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को राज्य की सहमति की नहीं बल्कि केवल केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है. डीएसपीई अधिनियम 1946 की धारा 6 राज्य के भीतर सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति को नियंत्रित करती है. नेक्स्ट, what does section 419 subsection 4 of BNSS 2023 require for a non-victim complainant to file an appeal? Consent of the police, approval from the sessions court, special leave from the high court और permission from the accused. BNSS 2023 की धारा 419 4 के तहत गैर पीड़ित शिकायतकर्ता को अपील दायर करने के लिए क्या आवश्यक है? पुलिस की सहमति,
शस्त्र न्यायालय से अनुमोदन, उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति या अभियुक्त से अनुमति? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, स्पेशल लीव फ्रॉम द हाई कोर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति। Recently, the Rajasthan High Court, in the case of Ashraj Stone Private Limited versus Karav International, ruled that as per Section 413 of the BNSS, a victim can directly file an appeal without seeking special leave from the High Court. Section 419, subsection 4 of the BNSS 2023 requires a complainant who is not a victim to obtain special leave from the High Court to appeal against an acquittal. हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने आशराज स्टोन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कारव इंटरनेशनल के मामले में फैसला सुनाया कि बीएनएसएस की धारा 413 के अनुसार पीड़ित उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति लिए बिना सीधे अपील दायर कर सकता है। बीएनएसएस 2023 की धारा 419(4) के अनुसार शिकायतकर्ता को, जो पीड़ित नहीं है, बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के लिए उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। नेक्स्ट, an unlawful assembly requires assembly of at least dash persons with a common object 2, 4, 5 और 6। एक अवैध सभा के लिए कम से कम डैश व्यक्तियों का एकत्र होना आवश्यक है जिनका एक सामान्य उद्देश्य हो। 2, 4, 5 या 6। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। Section 141 of the Indian Penal Code 1860 defines the term unlawful assembly as an assembly of 5 or more persons having a common object to perform unlawful act or a lawful act through unlawful means। भारतीय दंड संहिता 1880 की धारा 141 अवैध सभा की परिभाषा देती है जिसमें 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना शामिल होता है जिनका सामान्य उद्देश्य अवैध कार्य करना या अवैध तरीकों से किसी वैध कार्य को करना होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन डैश 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 अक्टूबर और 26 नवंबर। भारत में संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 अक्टूबर या 26 नवंबर। सेंड अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।